Uh, Good evening, class 12th. This video is for economics, and the topic is demand. The chapter is on demand, and the topic basically which I'm going to discuss under the chapter demand is exceptions to the law of demand. The cases where the law of demand does not apply. Okay, so as you know, law of demand states that as the price will rise, quantity demanded of the commodity will fall. Okay, and exceptions to the law of demand when we are discussing, we want to say the opposite. We want to say that as the price of the commodity will rise, what will happen? The quantity demanded will not fall. On the contrary, it will also rise. Quantity demanded, and this is just the opposite of what law of demand says. As you know, a normal demand curve has a negative slope, but in the case of exceptions to the law of demand, the demand curve will look like this, because exceptions to the law of demand are indicating a direct relationship between the price and the quantity demanded. Price we keep on the y-axis and quantity demanded on the x-axis. Okay, now pay attention. Here what's happening is price is, let's say, OP0, at which, let's say, Q0 quantity, OQ0 quantity is being demanded. So these 2 points are meeting here. We can plot the point over here. Now let's say the price rises to P1, OP1. Price is rising, but the quantity will not fall in this case. These are exceptions to the law of demand. Opposite is happening. Quantity demanded is also rising to OQ1. You can see that, yeah, this is rising. Okay. Now, keeping your ruler vertically on the graph from point Q1, and thereafter put your scale horizontally on the graph from the point P1. You make a dotted line, and here these two lines, vertical and the horizontal lines, from P1 and Q1, they join, and I hope you can see this. And if I join these 2 points, we obtain a demand graph which is not having a negative slope, rather it is having a positive slope. Positive slope of demand curve in this case is indicating a direct relationship between the price and the quantity demanded. So as the price will rise, quantity demanded will also rise in the case of exceptions to the law of demand, not law of demand. And as the price will fall, quantity demanded will also fall. So let's proceed. What are those cases? The first such case is Giffen goods. Now the word Giffen has been coined from the name Sir Robert Giffen. He observed a phenomena, okay, that the staple diet somewhere was, of poor workers was bread and meat. So when the price of bread increased, the workers did not reduce the consumption of bread, as bread was their basic food. Okay, rather they consumed more of bread and they sacrificed meat. I'll clarify this by an example, and I will, instead of having bread, I'll make it, let's say, chapati, roti, and meat. So here is the example. Let's say a poor worker, a worker's basic diet is 4 rotis, 4 chapati, and the price of one roti is, let's say, rupees 10. So he's spending rupees 40 in one meal, I'm talking about, on rotis, and then he's consuming one plate of meat which is costing him rupees 80. Okay, workers
these manual workers, they sweat out, they really work hard, and they need to consume more food. Their calories intake is more than the office going people. So let's say he's spending 120 on one meal. Okay, now I'll translate in Hindi. एक एक सिंपल मजदूर का उदाहरण ले रहे हैं हम, जो कि दिन भर मजदूरी करने के बाद एक पास के ढाबे में 4 रोटी, एक रोटी 10 रुपए की है और एक प्लेट मीट खाता है, मेन डाइट है उसकी। तो 4 रोटी 10 रुपए के हिसाब से बनती है 40 रुपए की, और एक प्लेट मीट जो खाता है वो 80 रुपीज की प्लेट है। तो वो 120 रुपए खर्च कर रहा है एक समय की मील पे। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, पे अटेंशन, द प्राइस ऑफ रोटी गोज अप। रोटी जो है 16 रुपीज की हो गई। पे अटेंशन, रोटी हो गई, चपाती इज नाउ कॉस्टिंग ₹16। प्राइस ऑफ मीट इज द सेम। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये मजदूर जस्ट बिकॉज रोटी महंगी हो गई है, वो तो एक बेसिक डाइट है उसकी, वो रोटी खाना कम नहीं करेगा। ये देखा गया था कि इस केस में क्या करेगा वो पेट भरने के लिए, बल्कि वो ज्यादा रोटी खा रहा है। ही इज हैविंग 5 रोटीज at the rate of ₹16, okay, which comes to ₹80, okay, and then बजट उसका क्या है, कितना खर्च कर सकता है, जो पहले खर्च कर रहा था एक प्लेट पे 120, एक मील पे वो खर्च कर रहा है। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक मील पर वो खर्च कर रहा है 120। अब वो कर्टेल क्या करेगा, किस चीज में सेक्रीफाइस करेगा, वो ढाबे वाले को बोलेगा कि यार एक काम कर, आधी प्लेट, हाफ प्लेट मीट कर दे तू, हाफ प्लेट मीट, क्योंकि मीट ऑलरेडी कॉस्टली है, इस बात को आप समझो। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, फुल प्लेट मीट की थी 80 की, हाफ प्लेट हो गई 40 की। रोटी कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है, लेकिन जब रोटी का प्राइस बढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोटी खाना बंद कर देगा। उसने यहाँ देखो उल्टा हुआ, रोटी का प्राइस बढ़ा, वो रोटी का कंजम्पशन कम ना कर करके ज्यादा कर दिया, एक रोटी ज्यादा खा रहा है वो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो दिस इज व्हाट इज गिवन पैराडॉक्स वी कॉल इट। सर रॉबर्ट गिफन ने कहा था कि इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनका प्राइस जब बढ़ता है तो उनकी डिमांड कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। यहाँ पर रोटी कह लो या ब्रेड कह लो, आई वोंट कॉल इट inferior, I'll call it staple diet of the worker. I hope you can understand this over here. This example made sense to you. Then I'll take second example. I'll erase this, or I'll take this example over here. I'll erase this beta. दूसरा उदाहरण लेंगे अब। तो लेट्स से, वेट, आई एम इरेजिंग इट, ओके, इसको ब्लू इंक से करते हैं। नाउ पे अटेंशन, आपको पता होगा चावल की बहुत वैरायटी होती है। देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ राइस, देयर इज कॉस्टली राइस, बासमती राइस, एंड देयर इज चीप लो क्वालिटी ऑफ राइस विच इज वेरी चीप। तो लेट्स से, पे अटेंशन, जो लो क्वालिटी राइस होते हैं वो मोटे चावल कहते हैं उसको हिंदी में, वो राशन पे भी मिलते हैं। सपोज आई विल कॉल इट मोटा चावल या मोटा राइस, आई एम कॉलिंग इट। ये इंफीरियर क्वालिटी का राइस है एंड इसका रेट चल रहा है सपोज ₹30 पर केजी। ओके, सो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर, गरीब कंज्यूमर है, ही बाइज, पुअर कंज्यूमर, आई विल राइट पुअर, 10 केजी, महीने का 10 केजी लेता है। तो एट द रेट ऑफ ₹30, कितना खर्च कर रहा है वो चावल पे, 300 रुपीज का वो मोटा चावल लेता है जो इंफीरियर क्वालिटी का राइस है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग मी।
Now what happens is, wait, I need space over here to explain this example to you. Now what happens is कि प्राइस ऑफ राइस, ये मोटा चावल जो है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस है, इसका प्राइस फेल डाउन टू 25. Are you understanding? So what will happen? He will not buy more of mota rice. He is not going to buy more of this inferior quality of rice. Rather 10 किलो की जगह वो क्या कर रहा है, 8 kg ले रहा है. 8 kg मोटा चावल, I'm writing in मोटा only, मोटा राइस, प्राइस गिर चुका है, लेट्स से मैंने बताया आपको 25 पर kg हो गया. तो 25 into 8 makes it how much? Rupees 200. Are you understanding it? तो 200 रुपीज उसने यहाँ खर्च कर दिए, 8 किलो मोटा राइस लिया उसने. उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इंफीरियर चावल है, ये इंफीरियर क्वालिटी का राइस है, मोटा चावल. 30 प्राइस था, उसका प्राइस 30 रुपए से 25 रुपए गिरा. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ऐसे में क्या करता है कंज्यूमर, ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा मात्रा में लेता है. लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, विपरीत. पहले वो 10 किलो चावल ले रहा था, ये मोटा चावल, अब वो ले रहा है 8 किलो, जब रेट 25 हो गया तो 200 खर्च कर रहा है. अच्छा, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा था वो चावल पे, पिछले महीने कितना खर्च किया था, 300. तो उसके यहाँ पे 100 रुपीज बच रहे हैं ना. अब बात को समझना. तो वो क्या कर रहा है, 2 kg ऑफ सपोज बासमती या बेटर क्वालिटी राइस, बहुत वैरायटी में बासमती का कह रहा हूँ, बासमती राइस वो ले रहा है आपको समझाने के लिए. बेटर क्वालिटी राइस है ये, और इसका दाम जो है जस्ट डबल है. ये कितना है, 50 रुपीज पर kg है. ही वुड लाइक टू एंजॉय बेटर क्वालिटी ऑफ राइस. तो 2 किलो वो बासमती राइस ले रहा है जिसका दाम है 50 रुपए प्रति किलो. तो यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है वो, 100 रुपए. टोटल खर्चा कितना आ गया उसका इस महीने भी, 300. टोटल क्वांटिटी राइस कितना लिया है इस महीने भी, 10 kg. देखो 8 किलो मोटा राइस, 2 किलो बासमती राइस उसने एडजस्ट कर लिया. पिछले महीने पूरे 10 किलो वो मोटा चावल ही खा रहा था और खर्च 300 रुपए कर रहा था. इस महीने उसने 10 किलो चावल लिए, 300 रुपए ही खर्च किए, लेकिन इंफीरियर क्वालिटी राइस की मात्रा कम कर ली. 8 किलो उसकी जगह उसने बासमती चावल अफोर्ड कर पाया. वो 100 रुपए के उसने 2 किलो बासमती चावल एंजॉय करे. तो ये आप पॉइंट को समझो. गिवन गुड्स ये हैं, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसपे कंज्यूमर काफी इनकम खर्च करता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता. लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी. बट हियर इट्स हैपनिंग द ऑपोजिट. द प्राइस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट इन माय एग्जांपल इट्स मोटा चावल का प्राइस कम हुआ है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम हुई है, बढ़ी नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर स्विच ओवर कर गया किस पे, थोड़ा बहुत उसने बासमती चावल भी जो पैसा बच रहा था उससे उसने लिया. अब हम आते हैं नंबर 2 पे. नंबर सेकंड केस ऑफ व्हाट, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कॉस्टली वॉचेस हो गई, डायमंड रिंग्स हो गई, ओके, कॉस्टली कार्स हो गई, ओके, मोबाइल्स हो गई, हार्ले डेविडसन, मर्सिडीज, ऑडी. तो ये चीजें, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरियस आइटम्स, ये रिच पीपल बाय टू शो ऑफ, टू फ्लॉन्ट देयर prestige or let's say high status that they are very rich. Okay, so these rich people won't go for cheap products because वो हिंदी में कहते हैं ना, वो उनकी शान के खिलाफ होगा. They want to show off. I hope it's clear. So higher the price, more will be the quantity bought by the rich people of these luxurious items.